Student of class 7, in previous video we have discussed about algebraic expression and what is algebraic expression and monomial, binomial, trinomial, okay, and polynomial. So polynomial means expression which have one or more than more terms are called polynomial, है ना. So there are also like and unlike term. तो how what is like term? Like जैसे हम if you are studying large students of class 7 are like because they are reading in class 7. Student of 6 and 7 are not like. Similarly बच्चों यहाँ पे if the variable have if any expression have same variable then they are called like terms, and they have not any same variable then they are unlike. Okay, they are not like means unlike. Suppose you have given here 2xy and 5xy. What is the variable here? X and y, xy. So both are like. 2xy and 2yz. Okay, 2 is both, have both, y's have both, but it has x and z, so they are unlike because their variable are different. Clear? Same class of students are like. Okay, so you can see I have already told you about monomial, binomial, trinomial and polynomial. Monomial means one term, binomial is two term, trinomial three terms, and polynomial means expression which have one. These all are polynomial. सभी polynomial हैं, है ना. वन टर्म, टू टर्म, थ्री टर्म, फोर टर्म्स होते हैं, and terms are separated by plus sign or minus sign. Clear? तो इसके बारे में कल बता चुका था. 12.1 यहाँ पे get the algebraic expression in following cases using variable, constant and arithmetic operation. Subtraction of z from y. Subtraction of z from y. So क्या होगा बच्चों ये? y minus z. How many terms are there? Two terms. One half of sum of numbers x and y. One half of sum of number x and y. So what is the sum of x and y? X plus y and half divided by 2. तो वैसे आपको सबको बनाना है इसका, है ना. जैसे यहाँ पे दिया क्वेश्चन नंबर 2, आइडेंटिफाई द टर्म एंड देयर फैक्टर, है ना. तो हमने बताया था कि फैक्टर ट्री से हम कैसे इसके फैक्टर फाइंड कर सकते हैं. फैक्टर ट्री जैसे ये आपका दिया है x माइनस 3. x माइनस 3 का फैक्टर ट्री क्या होगा? हाउ मेनी टर्म्स आर देयर? टू टर्म्स, x and minus 3. What about this 5x square x y square plus 7x square y? So there are two terms. First is 5x y square. इसका टर्म्स क्या क्या हो जाएंगे? फैक्टर होंगे 5x and y. What about this? It has three factors 7, x and y. तो इस तरह से हम फैक्टर ट्री के थ्रू इसको हम सॉल्व कर सकते हैं. क्लियर? सॉल्व दिस. आइडेंटिफाई द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट. न्यूमेरिकल बताया था आपको. तो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ दिस इज 5 and what is about t square minus 3. 1 1 1 1. What is the numerical coefficient? 1 2 3. ऐसे आप फाइंड कर सकते हैं, है ना. मोनोमियल, बाइनोमियल, यस यू नो दैट. हाउ कैन यू कैन फाइंड इट. ओके, से पूछा है क्वेश्चन नंबर 6 में आर दे लाइक आर स्टेट वेदर गिवन पेयर ऑफ टर्म्स इज ऑफ लाइक आर अनलाइक.
तो भी पहचान सकते हो आप। दे बोथ आर लाइक, दिस बोथ आर आल्सो लाइक बिकॉज दे आर कांस्टेंट, इट इज़ वेरिएबल एक्स, दिस इज आल्सो लाइक, दिस इज नॉट लाइक क्योंकि दिस इज एम स्क्वायर पी, दिस इज एम पी स्क्वायर। ओके, so you solve this. Now we go ahead addition and subtraction. So in addition and subtraction we add the like terms, okay, or subtract the like terms. like term कहीं पर डिपेंड होता है बच्चों, like terms में हम उसको हम ऐड कर सकते हैं और उन्हीं को हम subtract भी कर सकते हैं। ओके, नाउ सी द एग्जांपल। सपोज दीजिए यहाँ पे दिया 3x प्लस 4x, दिस बोथ आर लाइक, ऐसे 2 मैंगो 3 मैंगो प्लस 4 मैंगो 5 मैंगो, है ना। सेम 3x प्लस 4x 7x, 4xy प्लस 2xy, दिस बोथ आर लाइक, 4 प्लस 2 6xy। क्लियर। तो ये स्क्वायर एडिशन ऐसा करते हैं। सब्ट्रैक्शन भी सेम होता है। ओके, इसमें एग्जांपल्स दिए हैं, यू सॉल्व इट, यू सी द एग्जांपल क्लियरली, है ना, वेयर केयरफुली। जैसे यदि आपको ऐड करना है 3x प्लस 11 7x माइनस 5, तो दिस बोथ आर लाइक एंड दिस बोथ आर लाइक, 3x प्लस 7x 10x, 11 minus 5 that is 6. Okay, in this example add 3x plus 11 plus 8z and 7x minus 5. तो 3x का सम 7x होगा बच्चों, 11 का 5 से, और 8z इज डिफरेंट तो उसको ऐसे लिख देंगे बिकॉज दिस इट हैज़ नो एनी पेयर। ओके, subtract a minus b from 3a minus b plus 4। ओके, तो इसको भी आप कर सकते हैं, 3a minus b plus 4 में से सब्ट्रैक्ट करना है जो भी मान नंबर होंगे। इफ इट इज़ मोनोमियल देन यू कीप इट इन ब्रैकेट, देन माइनस साइन के अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस इंटू प्लस माइनस एंड माइनस इंटू माइनस प्लस, तो 3a माइनस a बी माइनस बी कैंसल, 0 हो जाएगा, प्लस 4, 2a माइनस 2a प्लस 4 इसका आंसर हो जाएगा बच्चों। ये करके बताए हुए हैं, आपको देख सकते हैं। 3a माइनस a 2a, 1 माइनस 1 मतलब b माइनस बी दोनों कैंसिल हो जाएंगे, या 1 माइनस 1 लिख सकते हैं। कॉपी न्यूमेरिकल कोफिशिएंट को हमने ब्रैकेट में रखा। ओके, समझ में आ रहा है? देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, ये तो हो गया राइट। ओके, ये देखिए, व्हाट इज द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ a इज 3, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ a इज -1, ए को हमने बाहर कर दिया। ऐसे b और b का न्यूमेरिकल 1 1 है, कॉमन ले लिए b और b, 4 दोनों कैंसल, 2a प्लस 4। ओके, आप कर सकते हैं। एग्जाम्पल 4 बोलता है करेक्ट लाइक टर्म एंड सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। तो उसको एक जगह आपको कलेक्ट करना है। ये दिया है रीअरेंजिंग टर्म, हमने रीअरेंज कर दिया, फर्स्ट टर्म को लिख दिए, फिर सेकंड टर्म। तो अरेंज कैसे किया हमने, इन दोनों के लाइक टर्म हो गया 1 m स्क्वायर इस 5m 9m माइनस 5m माइनस 4a प्लस 10 इज सेपरेट, 12 माइनस 4 8, 5 माइनस 9 माइनस 4 और माइनस 4 माइनस 7 माइनस 11 प्लस 10, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये सब्ट्रैक्ट करना है, इसको भी सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस, तो यू चेक दिस, यू ऑल्सो यू कैन, यहाँ पे इसमें एग्जांपल दिया है
फ्रॉम द सम ऑफ दिस एंड दिस, दोनों को प्लस करना है. सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ दिस एंड दिस. तो फ्रॉम द सम ऑफ दिस, तो पहले इन दोनों का आपको सम करना है, ऐड करना है. ऐड दिस टू एक्सप्रेशन, दोनों को हमने ऐड किया तो आंसर आया. और फिर इन दोनों का मैं फिर लास्ट टू के सम ऑफ, इन दोनों को सम करना है. इन दोनों का सम कीजिए. ओके, इन दोनों का हमने सम किया. ओके, तो उसका आंसर देन ऐड दिस एंड दिस, दोनों को ऐड किए हमने, ऐड कर दिया. ऐड करने से ही आंसर आया. ये इन दोनों का सम ये हुआ और सेकंड थर्ड फोर्थ का सम ये हुआ. नाउ सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1. 2 को नंबर 2 जो है एग्जांपल, ये इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से माइनस कर दिए. माइनस में ध्यान रखेंगे साइन विल चेंज ऑफ सेकेंड एक्सप्रेशन. व्हाट इज द साइन ऑफ सेकेंड? 2y² प्लस yz हमने लिख दिया. बट साइन विल चेंज, प्लस साइन क्या हो जाएगा माइनस, प्लस साइन विल चेंज इन माइनस. ओके, नाउ y² माइनस 2y² दैट इज माइनस y². साइन ऑफ बिगर नंबर एंड 3yz माइनस yz दैट इज 2yz प्लस z². क्योंकि बच्चे ये ऊपर में इसका साइन चेंज नहीं होगा, सिर्फ सेकेंड एक्सप्रेशन का. सो आंसर विल बी माइनस y² प्लस 2yz प्लस z². क्लियर बच्चों? तो एक 12.2 में वही करना है, सिंप्लीफाई कॉम्बाइनिंग लाइक टर्म. आपको सिंप्लीफाई करना है. जैसे फर्स्ट में देख सकते हैं b और b लाइक टर्म है, ये भी कॉमन है. तो 21 प्लस 7b माइनस 20b माइनस 32, ऐसे अरेंज करके उसको लिख देना है. ओके, और इसको जो भी क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो सकता है कीजिए एंड सेंड इट थ्रू व्हाट्सएप. ओके, थैंक यू. फिर उसके बाद हम फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ एन एक्सप्रेशन, कि एक्सप्रेशन से वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, इसके बारे में वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो. ओके, थैंक यू.